under my consideration. Matters raised with permission of Chair Shri M. Shanmugam, not present. Shri Irana Kadadi. धन्यवाद महोदय। Sir, I can notice it. Don't have to say it. इस सदन के समक्ष में 1 second. While the honorable member was indicating he is walking out, he is not walking out from the house. He is walking out from his constitutional obligations. He is walking out from performance of his duty for the people. This is a platform to serve the people at large as per rule of law. Such a failure, the people have to judge by themselves. I surely, sitting in this chair, cannot appreciate such a conduct by the honorable members. Honorable members, both the honorable members, Madam Jaya Bachchan, honorable members, I would have to name some of the members for their indecorous conduct. I urge honorable members to maintain decorum. Please, let us not create. Already we are indicating to the public, ma'am, this is not the way. I'm so sorry. Not this way. Take recourse to rules. Please continue. Honorable member to continue. I would urge every member in the House to optimally utilize this time to serve the people at large. I have indicated on global fora also, we are witnessing a time when our rise is unstoppable and the whole world is in recognition of it. So make contributions from that perspective. Honorable member, please continue. धन्यवाद महोदय। आज इस सदन के समक्ष में कर्नाटक और हमारी गौरवशाली कन्नड़ भाषा के विषय पर विकास पर संबंधित मुझे सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, इसलिए मैं कन्नड़ में बात करना चाहूँगी। कन्नड़ ಭಾಷೆಯು ಸುಮಾರು 3000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು 6 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕನ್ನಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ। ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ। ಆಚಾರ್ಯ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಲಿಪಿಗಳ ಮಹಾರಾಣಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದರು। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ 2011ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರದ ಶಾಶ್ವತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ। ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ। ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಂತೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡಬೇಕು। ಈ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಭವ್ಯವಾದ ಭಾಷೆಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ। ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। Dr. V. Sivdasan. महोदय, मैं OTT प्लेटफॉर्म पर जो
ऑब्सीन कंटेक्स्ट है, उस विषय पर पाबंदी लगाने के लिए मैं शून्यकाल में खड़ा हुआ हूँ। मध्य OTT यानी ओवर द टॉप ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी, वायाकॉम 18, एप्पल टीवी, रिलायंस ब्रॉडकास्ट, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ऐसे 40 से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म हैं और इन अधिकांश प्लेटफॉर्म पर जो प्रदर्शन किया जाता है सीरियल्स का, उसमें हिंसा, वल्गैरिटी, ऑब्सीन, गाली गलौज की भाषा, किलिंग को ग्लोरीफाई करना, ड्रग्स को ग्लोरीफाई करना और इतनी अभद्रता और अश्लीलता है कि परिवार के साथ बैठकर देखना कठिन है। रोजमर्रे की जिंदगी में हम जिस प्रकार की गाली का प्रयोग नहीं करते, वैसी गालियां और इन प्लेटफॉर्म पर दिखाने वाले सीरियल्स के अंदर दी जाती है। और अब तो देश के बड़े बड़े कलाकार नेटफ्लिक्स, अमेजॉन के लाइव स्ट्रीमिंग सीरियल में शामिल होते हैं। सती महोदय, ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, इनका बाजार तेजी से बढ़ रहा है और 2027 तक $7 बिलियन होने की संभावना है। और ये जो एज की रेटिंग है, ये भी वो स्वयं करते हैं, जबकि ये काम किसी एक्सपर्ट पैनल को और किया जाना चाहिए। महोदय, जिस प्रकार फिल्म के सेंसरशिप के मैं पक्ष में नहीं हूँ, OTT प्लेटफॉर्म के किसी प्रकार के प्रतिबंध के, लेकिन जैसे फिल्मों के लिए और कि रेगुलेशन बना हुआ है और हम सबों को याद है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत बना है, उसके द्वारा फिल्मों के प्रदर्शन के पूर्व उसकी समीक्षा की जाती है। उसी प्रकार टेलीविज़न पर टेलीकास्ट हेतु केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 बना हुआ है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर जो कुछ दिखाया जाता है, इसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। तो मैं आपके माध्यम से सदन से ये आग्रह करूंगा कि भारत सरकार को इन OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटर बनाया जाना चाहिए। अब ये सेल्फ रेगुलेशन है, उसमें रेगुलेटर की उन्होंने अपना एक रेगुलेशन बनाया रेगुलेट करने का, लेकिन सरकार की ओर से उसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये केवल हिंसा और बाकी नहीं, ये सॉफ्ट पॉर्न जो है, ये मनोरंजन के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न दिखाते हैं और इसका परिणाम है कि बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग और घरों में जिस प्रकार से इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। थैंक यू। श्री मनास रंजन मंगराज। Honorable Vice Chairman ma'am, thank you giving this opportunity. My subject is opening of repertory units on Prahlad Natak and Ghumura dance in the district of Ganjam and Kalahandi in Odisha. Ma'am, Odisha is a culturally rich state and folk and art as well as folk dance in the integral part of this ancient culture. But due to negligence on part of the government and fading popularity after the advent of electronic media, folk dance forms such as Ghumra dance of Kalahandi district and Prahlad Natak of Ganjam district are on the verge of extinction, and the plight of the artists of the above folk art forms are becoming worse day by day. Unless the government takes necessary steps to restore the heritage of Kalahandi and Ganjam districts by saving and nurturing the above art and artists, the future will be grim. Hence, it is my humble request to set up repertory units for the above mentioned art forms in Kalahandi and Ganjam districts so that they could be saved and the artists nurtured and promoted. Thank you. Thank you. Dr. Anil Sugendra Rao Bonde. सभापति महोदया, उपसभापति महोदया, मैं 0 आवर के माध्यम से जंग निरोधक थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट किए हुए
कंटिन्यूअस गैल्वनाइज रिबार का इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कंस्ट्रक्शन में उपयोग करने के बारे में रख रहा हूँ। माननीय महोदया, शासकीय रिपोर्ट के अनुसार भारत हर वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान मूलभूत सुविधा के में उपयोग किए गए लोहे को लगने वाली जंग से सहन करता है। लोहे के जो बार रहते हैं उसका नैसर्गिक स्वभाव है जंग खाना। जंग कभी रिपेयर भी नहीं हो सकता और एक बार शुरू होने के बाद में रोक भी नहीं सकते। जंग शुरू होने के बाद में लकड़ी के लगे हुए टर्माइट जैसा काम करता है। लोहे की सलाई जंग की वजह से 3 गुना एक्सपांड होती है। उसकी वजह से कंक्रीट में क्रैक्स आती है और कंक्रीट कोलैप्स होता है। कंक्रीट का सच्छिद्र स्वभाव तथा तापमान में बदलाव उसकी वजह से जो हेयरलाइन क्रैक होती है, उसकी वजह से लोहा, पानी और आर्द्रता लोहे की जंग की शुरुआत करते हैं। लोहा खुले गोदाम में रखने के बाद में भी जंग खाता है तथा ये लोहे की जंग की वजह से मूलभूत सुविधा, पुलिया, रोड कमज़ोर होते हैं। जंग रोकने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री ने इसका मुआवजा किया है और वह विचार कर रही है। जंग रोकने वाले उपायों में स्टेनलेस स्टील, एपॉक्सी कोटिंग और स्टील को गैल्वनाइज करना, यह 3 उपाय है। स्टेनलेस स्टील की कॉस्ट गैल्वनाइज से 3 गुना ज़्यादा होती है। एपॉक्सी कोटिंग उतना प्रभावकारी नहीं होता क्योंकि उसमें भी क्रैक होती है और जंग लगना शुरू होता है। इसलिए हॉट डिप गैल्वनाइज TMT बार को जंग रोकने के लिए कामयाब है। गैल्वनाइजिंग एक मेटालॉजिकल रिएक्शन है जो 460 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है। उसके वजह से जिंक, स्टील और जिंक का एलॉय बनता है और इससे 3 से 5 गुना लोहे की आयु बढ़ती है। गैल्वनाइज TMT बार ओपन वेयर हाउस में सालों तक रखने के बाद में भी जंग नहीं खाता। इसलिए गैल्वनाइज TMT बार सस्टेनेबल और इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट और लोगों को देता है। करोजन रेट जिंक का 1% स्टील से है और उसकी वजह से इस अमृत काल में जब हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, यह लॉन्ग सस्टेनेबल रहे, इसलिए सभी TMT बार्स गैल्वनाइज करना जरूरी है। उसका खर्चा 16 रुपये प्रति किलोग्राम से ज़्यादा लागत नहीं होती। दैट इज़ सेटिस्फाइड ग्रीन प्रोडक्ट। गैल्वनाइज TMT या ब्लैक TMT बार से ज़्यादा बेटर स्ट्रेंथ होता है। वह बेंड, बेल्डिंग, कट करना के लिए आसान होता है और कौन से भी वेदर कंडीशन में या खुले वातावरण में भी वह टिकाऊ रहता है। उसके वजह से स्टेनलेस स्टील और इपॉक्सी कोटिंग की कंपैरिजन में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए हॉट डिप गैल्वनाइजिंग TMT बार का यूटिलाइजेशन देश के लिए फायदेमंद हो सकता है। मेरी सरकार से विनंती है कि इस क्षेत्र के ऊपर गंभीरता से देखकर सभी श्री संजीव अरोरा, एब्सेंट। श्री अनिल प्रसाद हेडगे, एब्सेंट। साई रेड्डी, एब्सेंट। श्री कैलाश सोनी, एब्सेंट। बोलिए, बोलो, माइक तो शुरू हो। धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हम एक अति विशिष्ट विषय पर आकर्षित करना चाहते हैं। जैसा कि पूरे सदन को भी ज्ञात है, हिंदुस्तान के इतिहास में स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण, क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण इस हिंदुस्तान में दूसरी आजादी के प्रणेता, इस लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने में जिनकी अहम भूमिका रही है, नौजवानों के उस समय के श्लाघा पुरुष और पाश्चात्य जगत के समाज जीवन का उन्हें पूरा ज्ञान, हिंदुस्तान के भी सारे विचारधाराओं के यदि अपन कहें समुच्चय, ऐसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण
संपूर्ण क्रांति के प्रणेता, उनके जीवन। Your subject is different. Kindly read the subject. Kailash Soni. Demand making provision under Arms Act for licensed businessmen dealing in gold, silver and diamond. गोल्ड सिल्वर डायमंड से संबंधित जेवरात हाँ, हाँ सोना चांदी। ये पहले अपने इस विषय की भी हमने नोटिस दिया था, अभी सूचित नहीं किया, सूची में नहीं है। महानुभाव आदरणीय उपाध्यक्ष जी, हमने दूसरा नोटिस दिया था अपने हिंदुस्तान भर में सोने चांदी के सारे विक्रेता और हीरे के विक्रेता, इनके साथ सारे हिंदुस्तान में आए दिन लूट, चोरी, राहजनी, इन सब की घटनाएं, कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाता कि किसी न किसी सराफा व्यवसायी की हत्या नहीं हुई हो, कोई हफ्ता नहीं जाता कि कोई राहजनी ना हो। दिन दहाड़े हिंदुस्तान भर के सारे प्रांतों में इनके साथ ऐसी वारदातें हो रही हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इनके जीवन की और इनके माल की सुरक्षा के लिए अपने आर्म्स एक्ट में ये प्रावधान किया जाए कि इन्हें समय सीमा में और अपना आर्म्स लाइसेंस उदारता पूर्वक, ये दो कंडीशन ऑलरेडी अपने आर्म्स एक्ट में एक प्रावधान है। अभी पिता के लाइसेंस में कुछ देने का प्रावधान है। ऐसे सम्मानजनक व्यवसाय करने वाले हमारे व्यवसायियों के लिए हमारे भारत सरकार इस तरह का प्रावधान करके उनके जीवन और माल की सुरक्षा के लिए ऐसा प्रावधान करेंगे, ऐसी विनय। Thank you. Sri Vinoy Vishwam. Dr. Sasmit Patra. Ma'am, can I just know the subject, because there were two notices I had given. To provide special focus state status to. Thank you, ma'am. Odisha. Honorable Vice Chairperson, ma'am, ओडिशा राज्य हमेशा से नेचुरल डिजास्टर्स का इनकाउंटर करते आ रहा है। पिछले 100 सालों में लगभग 99 साइक्लोन्स हम झेल चुके हैं, चाहे फौनी कह दीजिए, हुडहुड कह लीजिए, सुपर साइक्लोन 99 का कह लीजिए। कई ऐसे विषय रहे हैं जिसकी वजह से हमारे राज्य उड़ीसा को जिस तरह की क्षति पहुंची है, उस वजह से हमारे जो डैमेज होता है लाइफ स्टॉक को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी भरपाई करने में कई समय लग जाते हैं। इसीलिए हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने ये रिक्वेस्ट और डिमांड बार बार किया है कि उड़ीसा और उड़ीसा जैसे राज्य जो कि स्पेशल फोकस स्टेटस के हकदार हैं, जो कि नेचुरल डिजास्टर्स को फेस करते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, उनको स्पेशल फोकस स्टेट का दर्जा दिया जाए। ये स्पेशल फोकस स्टेट होता क्या है मैम? आप जानती हैं कि जो सेंटर स्टेट शेयरिंग पैटर्न्स होते हैं कोई भी प्रोग्राम का, वो 60-40 या 50-50 का होता है। बट जब कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने यह रिक्वेस्ट किया है कि तब जब से नेचुरल डिजास्टर आए 3 साल की अवधि तक आप वो शेयरिंग पैटर्न 60-40 की जगह पे 90-10 की रेशियो पे करें, जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए आप प्रोवाइड करते हैं। हम ये जानते हैं कि सरकार स्पेशल कैटेगरी स्टेट देना नहीं चाहती, अभी उन्होंने वो स्पष्ट किया है। बट स्पेशल फोकस स्टेट जब हम आते हैं, ये निर्धारित एक समय सीमा है सिर्फ 3 साल के लिए, और इस 3 साल में क्या होता है, उड़ीसा जैसे राज्य है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, और भी राज्य हैं जो कि क्षति पहुंचती है नेचुरल डिजास्टर्स के लिए, वेदर इट्स अ साइक्लोन, वेदर देयर आर फ्लड्स, वेदर देयर आर अदर इश्यूज, तो उनको ये 3 साल में एसडीआरएफ एनडीआरएफ सफिशिएंट नहीं होते हैं। 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ का जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने के लिए अगर ये शेयरिंग पैटर्न सेंटर स्टेट का 60-40 के जगह पर अगर 90-10 का रेशियो आ जाए, 90% केंद्र दे 3 साल के लिए, 10% राज्य सरकार दे, और 3 साल बाद आप फिर रिवोक कर ले टू द नॉर्मल शेयरिंग पैटर्न, तो राज्य को समय मिलेगा अपने आप को रिकवर करने के लिए,
और केंद्र सरकार पे भी कोई प्रेशर नहीं होगा कोई एडिशनल असिस्टेंस देने के लिए। अगर इस तरह की सोच हम रखते हैं, और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने कई बार जो आपके स्टेट्स का जो मीटिंग्स रहती हैं उस पर इसको उल्लेख किया है, मैं आशा करता हूं विनम्रता के साथ कि केंद्र सरकार इस बारे में गौर करे। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने नीति आयोग में भी डिस्कस किया है, उस पर डिमांड्स रखी हैं। मैं आशा करता हूं उड़ीसा की तरफ से और बाकी राज्य हैं जो ऐसे सफर करते हैं उनके लिए स्पेशल फोकस स्टेट एक सर्टेन अवधि के लिए दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Dr. Amar Patnaik. What is the topic, madam? You were not listed. It is not listed today, na, so. Demand to improve digital infrastructure and Right. all-round connectivity in Madam. rural areas of Odisha. Thank you, madam. Ma'am, there are 4 critical areas of infrastructural intervention required for development of any region. Number 1, roads. Number 2, railways. Number 3, banking services. Number 4, digital services. Now, ma'am, as we know, in the latest report of the MDPI, which was released recently by the Government of India, Orissa has exhibited one of the sharpest falls in poverty levels from about 29.43% to about 15%. This has been achieved despite severe shortcomings by the central government in these 4 areas of intervention. Now, let me talk about highways first. So, as far as highways are concerned, ma'am, 32 national highway projects are lagging in completion anything between 1 to 6 years. Honorable Minister had promised to get all this completed by mid-2023, but not much progress has yet been made. 37 new expansion projects were supposed to be completed by 2021, but 34 out of 37 work order has not been issued. No state road has been converted into national highways in the last 5 years. 14 new road stateways which were already declared to be converted into national highways in principle have also not been completed, have not been announced. And one particular road, ma'am, NH55, this particular road, which is the lifeline between eastern part of Orissa and the western part of Orissa and the economic corridor, has had 3 revisions and 1,315 accidents, 603 deaths still not completed, ma'am. Therefore, ma'am, this is an area where the Government of India is requested to make interventions. Honorable Chief Minister of Orissa has made repeated, demands on this. Repeated letters have been written, requested to Government of India to immediately look into this. The second aspect is about railways, ma'am. In railways, in the last 9 years, not a single new line has been announced by the Government of India. There are several projects which are lagging. The Paradip-Haridaspur railway is still not completed after, I think, more than 2 decades. As far as banking is concerned, ma'am, similar problem is there with 70% Gram Panchayats are not having brick and mortar branch. And as far as digital connectivity is concerned, it is only 34.5% in rural Orissa, and it is less than the national average by any stretch of imagination. People have to climb up to trees to get connectivity over there. So require Government of India's, I urge them to look into this, because people of Orissa deserve much better connectivity. The tribals of Orissa deserve much better connectivity, and the rural people of Orissa deserve much better connectivity. Thank you, ma'am. Sri Ramchandar Jangra, demand to provide houses to Gadia Lohars under Pradhan Mantri Awas Yojana and take steps to uplift the social status of this nomadic community. Special mention. Special